Hello everyone, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. I hope you all are doing really great, and now after economics board exam, I know I've taken a very long break and I've not updated you since. But yeah, I know you guys were also on break and nobody was preparing right now for BST because हम procrastinate करते रहते हैं, right? So now the reality check is that we just have 5 days left, which is less than a week now, and if we are given such a good break to prepare for exam, it was like a 10 days gap, right? We have already wasted 5 days out of it, so now we should get serious and we should actually start preparing well for it, because it is a subject in which you can really score 100 on 100, and it is very easy to score 100 if you prepare well and if you follow the right strategy, right plan to follow in your last 5 to 6 days. So that is the plan which I'll be giving you today, and it is a very realistic and honest plan which I also use, because we also had a similar long break between economics and business studies ka board exam, so we had enough time to prepare well for it. That is what I did, and I'll be telling it here. We'll progressively work towards it कि हम 4 दिन में हमारा syllabus complete कर ले बहुत ज़्यादा डिटेल में with practicing every type of question that can come from the chapters which we cover. And on the last day we'll be revising the entire thing. उसके लिए I'll be making a separate video जहाँ पर I'll share a proper checklist that you should make sure that at least these are the topics which you have completely revised. इनको skip करना you cannot afford. So do watch that video too whenever it comes. Stay updated. And today we'll be covering how do we actually cover the entire syllabus in like 4 or 5 days, so that we feel confident, and we feel confident each day that yes, we are 25% prepared now, we are 50% prepared now, we are 75% prepared now, and today we have completed the entire syllabus and we are good to go for exam. So this is what we are going to proceed with, and without any further delay, let's begin with the video. Okay, so before I jump into the video, let me make one thing very clear to you guys, that हम एकदम कामली कंटिन्यू करेंगे विद आर एंटायर सिलेबस एंड बहुत अच्छे से उसको कवर करेंगे. बट मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्टडी लाइक यू आर स्टडिंग एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड एकदम हम शुरू से हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में जाके लेक्चर्स देख के सब करके समझ रहे 10-10 घंटे के लेक्चर देख रहे हैं. नहीं, वी विल बी वेरी पर्टिकुलर बेस्ड ऑन बोर्ड्स. वील प्रिपेयर विद आर थिंग नाउ. So as I told you, the thing is going to be that we'll cover 2 lengthy chapters and 1 easy chapter in 1 day. ठीक है, 2 lengthy chapters हम करने वाले हैं, 1 easy chapter करने वाले हैं, so that you can take अच्छे खासा break between your study sessions too, and you will not feel burnout कि भाई इतना सारा पढ़ लिया एक दिन में, अब आगे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है. प्रैक्टिस भी करेंगे, हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, हम केस स्टडीज़ भी देखेंगे. तो सारी चीज़ें जब आप करोगे तो इट वोंट फील लाइक मोनोटोनस फॉर यू, एंड इट विल बी ईजियर टू कवर एवरीथिंग अप. ठीक है, तो अब स्टार्ट कैसे करना है, डे वाइज रूटीन आई टेल यू. Okay, so for day 1, we are going to keep it light, like moderate hoga. What chapters we are going to cover is from the book 1, which are chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3. Sequence में, because they are not related to further chapters, right? बाकी आपके sequence में chapters about the process of whole management है ना. यहाँ पर आपके पास intro है to everything. So थोड़ा light रहेगा, moderate रहेगा. These chapters are conceptual, highly conceptual, but इतना ज़्यादा lengthy नहीं है, and it's pretty easy to memorize. तो हम इनको एक साथ क्लब करके पढ़ेंगे. सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हमारा मेन फोकस होना चाहिए लर्निंग ऑल द डेफिनेशंस, लर्निंग द इम्पॉर्टेंस, द फीचर्स, एंड एवरीथिंग दैट इज़ गिवन इन पॉइंटर्स, राइट, जिसके आपको हेडिंग सब हेडिंग प्रॉपर बहुत ही प्रिसाइजली याद रहनी चाहिए. ये सब हम साथ में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इन चैप्टर्स में से प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं कि चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो इट कैन बी रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन, जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, एंड इट कैन बी रिगार्डिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट कैन बी रिगार्डिंग मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट, और ऐसा वाला क्वेश्चन जो आते हैं, एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर उसको हम डिकोड करें थ्रू अ केस स्टडी. तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ सकती है. इट इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल कि ये क्वेश्चन ही बनेंगे, तो इट्स वेरी इजी टू डू लाइक दैट. हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट से मोस्टली हमारे पास शुरू में फीचर्स से जो है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई केस स्टडी बन सकती है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ दिस. ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं, एंड वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट, एंड काफ़ी इजी भी है पढ़ने में. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. वहाँ से हमको पता है, हमें फेओल के सारे प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, हमें टेलर के सारे पता होने चाहिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी पर्टिकुलर विद इट, मिक्सअप ना कर दो, एंड यू शुड हैव, मतलब हर प्रिंसिपल का ना बहुत ही
प्रिसाइज, बहुत ही एक एक्यूरेट फॉर्मेट है, एक्यूरेट कंटेंट है जो आपको आना चाहिए. इफ़ यू मिक्स इट अप यू वोंट गेट गुड मार्क्स. तो हमें इस चीज़ को बहुत ही साथ साथ पॉइंटर्स बना बना के पढ़कर एकदम प्रॉपर दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो यही लिखना है, इस चीज़ का कीवर्ड ये है, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन. हमें प्रॉपरली एक आइडिया बन जाना चाहिए, एक फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए हमारे दिमाग में कि अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, दीज विल बी द वर्ड्स दैट विल बी आस्क्ड. ठीक है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट से आ रहा है, लीगल एनवायरनमेंट से आ रहा है, तो ये कीवर्ड मुझे दिखेगा क्वेश्चन में. अगर किसी प्रिंसिपल का आ रहा है, मान लो इक्विटी वाले का आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे दिखेगी मेरे क्वेश्चन में या कहीं पे कीवर्ड में. इतना ज़्यादा पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए. दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग सिर्फ 3 चैप्टर्स इन 1 डे कि आप उन चैप्टर्स को बहुत डिटेल में विद NCERT, विद 1 शॉट लेक्चर्स, विद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, विद PYQs की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ. ठीक है, फ्लो चार्ट बनाओ खुद से प्रॉपरली, उसको लास्ट दिन रिविजन के लिए रखो अपने साथ में कि ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई स्टडीड ऑन डे 1 एंड मुझे अब ये सारे डे 1 टू डे 4 मैंने जितना चैप्टर सिलेबसेस कवर किया है, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाए हैं, वो मैं डे 5 पर रिवाइज कर पाऊँ. ठीक है, तो ऐसे करके लिख कर बहुत डिटेल में लेक्चर से सुन के अच्छे से याद होता है, तो उससे इस तरह से हमें पढ़ाई करनी है. एंड फर्स्ट डे वी आर गोइंग टू कवर द 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम बुक 1, विच आर अबाउट मैनेजमेंट, इट्स प्रिंसिपल्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. एंड हमारे को प्रैक्टिस करनी है केस स्टडीज़ रिगार्डिंग इट, PYQs रिगार्डिंग इट. देखो किस टाइप के MCQs बनते हैं इन चैप्टर से, कहाँ कहाँ से बनते हैं, किस टाइप की केस स्टडीज़ बनती है, केस स्टडीज़ बनती है तो उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं. ये सेम चीज़ आपको बाकी चैप्टर्स के लिए भी करनी है, बट राइट ना आई एम जस्ट टेलिंग यू कौन से हमने चैप्टर्स क्लब करे हैं साथ में, वाई आर दे फ्रूटफुल, एंड उसका फ्लो चार्ट्स वगैरह आपको कैसे बनाने हैं. अब मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट बनाओगे तो प्रॉपर इंपॉर्टेंस के सारे पॉइंट्स, फीचर्स के सारे पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन के पॉइंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पॉइंट्स की कौन सा इंसान पहले तो कौन सी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, दिस पर्सन इज अ चेयरमैन, दिस पर्सन इज दिस, तो फिर उसकी ड्यूटीज़ आपको बताने होंगे. या फिर लिखा आएगा दिस पर्सन परफॉर्म्स दिस फंक्शन, एनालाइज कौन से लेवल पर होगा, एंड देन उसके और कुछ भी फंक्शंस बताओ. तो इतना ज़्यादा आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि आपको किसी भी तरह से मोल्ड करके सेम टॉपिक वो पूछेंगे और आपको आंसर आना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक टू वॉट यू आर स्टडिंग, एंड ऐसे आपको बाकी चैप्टर्स भी कवर करने हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डे 2. In day 2, we'll move on to the next chapters. We'll cover chapter number 4, chapter number 5 and chapter number 8. That is planning, organizing and controlling. Why we have taken controlling instead of staffing, हम sequence में क्यों नहीं चल रहे? Because planning and organizing already बहुत hard chapters, lengthy chapters हैं, and controlling is pretty easy and काफ़ी easier to score. उसमें बहुत particular content है, आपको पूरा chapter भी नहीं पढ़ना है. It's like half of the chapter is just coming, and बहुत ही पर्टिकुलर एंड बहुत ही नोन है कि ठीक है हमने इतना प्रोसेस पढ़ लिया, अब हमें आता ही है कि कंट्रोलिंग में हम क्या करने वाले हैं. एंड देयर आर वेरी पर्टिकुलर टॉपिक्स जहाँ से हमें पता है कि क्वेश्चन बनेगा, तो इट्स वेरी इजी. तो हमें क्या करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग को साथ में पढ़ना है. अब इसमें भी अगेन डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. वहाँ से ही केस स्टडीज़ बनकर आएंगी. मतलब केस स्टडी कुछ ना कुछ ऐसी होगी जहाँ से आपको पूछा जाएगा कि कौन से स्टेप की बात हो रही है, प्लानिंग की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग की हो रही है, इसकी हो रही है. बट देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो यही होंगे कि 4 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दो, ये बता दो, वो बता दो. तो दिस इज़ व्हाट विल कम, नो, हमें पता है. तो इसी को हमें फ्लो चार्ट्स में भी हमारे इंक्लूड करना है, इसी पे हमें फोकस भी करना है व्हेन वी स्टडी. ध्यान रखना BST में हेडिंग्स ट्राई करना कि जैसी NCERT में है स्पेसिफिक वैसी ही लिख कर आओ, वही कीवर्ड आपकी भी हेडिंग्स में हो आपके आंसर्स में. बिकॉज एक सोल NCERT है जो यूज़ होती है BST की पढ़ाई के लिए. जो रिफ्रेशर्स है वो भी मोर और लेस सिमिलर है टू दी NCERT. सो इट्स बेटर कि NCERT की हेडिंग्स आप याद करो एंड सिमिलर हेडिंग्स आप वहाँ लिख के आओ, सो दैट टीचर विल रेजोनेट योर आंसर विद द NCERT एंड उनको समझ में आ जाएगा कि तुमने NCERT से अच्छे से पढ़ाई करी है. वही कीवर्ड्स यूज़ करो जो NCERT में है, उसी प्रिसाइज फॉर्मेट से बताओ. हमारी NCERT में बहुत पर्टिकुलर तरह से चीज़ें मेंशन है, तो वैसे ही आपको भी अपने आंसर में लिख के आना है. What you have to add on is relating it to the case that is given to you, relating it with an example that you have. उस तरह से आपको आपका आंसर बड़ा करना है, वरना जो पॉइंट लिखना है वो वही होगा जो आपके बुक में दे रखा है, वेरी स्पेसिफिक, वेरी सिमिलर. एंड हर पॉइंट को मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स में एक्सप्लेन करो, मैक्सिमम 4 बोल रही हूँ मैं. एंड देन उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑफ 1 or 2 लाइन्स इंक्लूड करके एंड कर दो, अगर आपके पास 4 मार्क और 6 मार्क और क्वेश्चन है तो. वरना तो इतना भी रिक्वायर्ड नहीं है, बस मेंशन करो अच्छे से, उसको एक्सप्लेन करो 2-2, 3-3 लाइन में, एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है,
इस तरह से करना है। ये तीनों ही चैप्टर्स बहुत स्कोरिंग है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि कौन सी चीज़ की बात हो रही होगी, कौन सी की नहीं हो रही होगी। इंपॉर्टेंस हमें पता है एंड लिमिटेशंस हमें पता है, काफ़ी डायरेक्ट और सिमिलर होती है, ठीक है। तो पर ये ध्यान रखना कि मिक्स ना कर दो, कंट्रोलिंग की प्लानिंग में लिखना है, प्लानिंग की ऑर्गेनाइजिंग में लिखना है, नहीं। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, अगेन एज आई सेड कि आपको पता होना चाहिए कौन सी हेडिंग किस तरह से कौन से चैप्टर में गिवन है ना। तो ये करना है। फ्लो चार्ट्स हमें एज यूजुअल बनानी ही है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलना। केस स्टडीज़ हर चैप्टर की 2 से 3 केस स्टडी 6 मार्कर करके जाना। एंड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस तो डेली बैठकर एटलीस्ट एक वर्कशीट एमसीक्यू की किसी भी चैप्टर की सॉल्व करो यार, ठीक है। किसी भी 2 चैप्टर की एक वर्कशीट डेली सॉल्व करो, ऐसे करके करना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में मार्क्स लूज़ करना अच्छा नहीं लगता, राइट। कर सकते हो उसका। और प्लानिंग में टाइप्स ऑफ प्लान्स अच्छे से करके जाना, विद कीवर्ड्स लिखकर 100 बार भले ही, लेकिन अच्छे से करके जाना, उसमें गलती मत करना। कीवर्ड्स ध्यान रखना, तभी टाइप्स ऑफ प्लान आइडेंटिफाई कर पाओगे, वरना बहुत सिमिलर लगता है, सब कुछ नहीं हो पाएगा। ट्रोलिंग बहुत पर्टिकुलर है, केपीआई सीपीसी ये वाली चीज़ें अच्छे से करके जाना। प्रोसेस बहुत अच्छे से करके जाना, कंट्रोलिंग का आता ही आता है। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, दीज टॉपिक्स आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मत स्किप करना। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन करके जाना अलॉन्ग विद इट्स फीचर्स। एंड जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो उसका ऑर्गेनाइजिंग में, वो करके जाना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट skip it. Okay, so for day 3, the next 3 chapters are going to be staffing, directing and the last chapter from book 2, which is consumer protection. ये 3 chapters हम cover करेंगे. Again the same logic, 2 lengthy chapters with 1 easy chapter and this time a very very easy chapter. इसमें तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प कंटेंट है, बहुत ही ईजी है टू इवन मेमोराइज। कुछ मेमोराइज करने का भी नहीं है, वी बाय द नेम अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है यही चीज़ है इसमें, तो बहुत ईजी चैप्टर है। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग इज़ गोइंग टू बी सिमिलर टू द बाकी प्लानिंग प्रोसेस वाले जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। जो भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वाले करा है हमने, सिमिलरली पढ़ना है। वही 1 शॉट लेक्चर्स, प्रॉपर एनसीईआरटी की रीडिंग, प्रॉपर डेफिनेशंस को याद रखना, प्रॉपर आपके लिमिटेशंस इंपॉर्टेंस की डेफिनेशंस वगैरह याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीचर्स जो भी उसमें डिविजन्स हैं वो सब अच्छे से करके जाना, उसे स्किप मत करना। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिमिलर एंड अक्रॉस द होल बुक 1 यही है। इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड फीचर्स, ये 3 चीज़ें ही पूछी जाती है। किसी चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा है तो हमें पता है कि वो एक्स्ट्रा करके ही जाना है, बिकॉज किसी तो चैप्टर में है कि कुछ डिफरेंट है, अगर वो ही नहीं करोगे तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। जैसे डायरेक्टिंग में मोटिवेशन, लीडरशिप वगैरह है, अच्छे से करके जाना, उनके बीच का डिस्टिंक्शन पढ़ के जाना, कीवर्ड्स पढ़ के जाना कि कौन सा किस चीज़ को हाईलाइट करता है, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है। इन सम केसेस कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है आपको लगेगा लीडरशिप भी सही आंसर है, मोटिवेशन भी है, इसका कीवर्ड इधर भी है इधर भी है, हाउ डू यू एक्चुअली आइडेंटिफाई। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी प्रिसाइज व्हाइल यू रीड। यू नीड टू नो कौन सा वर्ड कौन से पैराग्राफ में यूज़ किया हुआ है, वो मोटिवेशन के पैराग्राफ में लाइन है या फिर वो डायरेक्टिंग के पैराग्राफ में। प्रोसेस के निमोनिक्स पढ़ के जाना एंड इंपॉर्टेंस फीचर्स वगैरह करके जाना, जैसे मैंने अभी एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे से करके जाना। फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लुक एट द पिक्चर्स वेरी नाइसली, लुक एट हाउ ईच थिंग इज़ डिनोटेड वेरी नाइसली, कौन से राइट को किस तरह से बोला जाता है, किस वर्ड से बोला जाता है, ठीक है। तो उसको अच्छे से करके जाना। राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो किस टाइप की केस स्टडी आएगी, बहुत पर्टिकुलर केस स्टडी आती है, रिपीटेड केस स्टडी आते हैं। हमें पता है कि अगर ऐसा बोल रहा है केस में तो ये वाला राइट होगा, ये बोल रहा है केस में तो ये वाला होगा। तो हर राइट के अकॉर्डिंग एक एक केस पढ़ के चले जाना, अच्छे से समझ के जाना कि किस तरह से उस राइट के लिए क्वेश्चन आएगा। रिड्रेसल मैकेनिज्म, 3 टियर पूरा मैकेनिज्म जो है आपका, उसको करके जाना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लॉफुली जो मैकेनिज्म है, लॉफुल मैकेनिज्म, वो अच्छे से पढ़ कर जाना। एंड जो आपके राइट्स हैं एज एन इंडिविजुअल, मतलब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो करके जाना। मेरे टाइम पे वहीं से क्वेश्चन आया था, राइट से क्वेश्चन नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आया कि हमें ये हो गया है फ्रॉड, ठीक है, ये दिक्कत हो गई है, कौन सा राइट वायलेट हुआ है ये बताओ, एंड देन व्हाट कुड हैव बीन द स्टेप्स विच यू माइट हैव टेकन टू टेक केयर कि ऐसा ना हो, तो वो स्टेप्स पढ़ के जाना। लास्ट की चीज़ें स्किप मत करके जाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपके पास बहुत सारे वो नहीं कि कोर्ट्स वगैरह कि यहाँ पे ये बना रखा है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ही बना रखा है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, दे डोंट आस्क सच पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट हाँ, जहाँ पर ज़्यादा स्कोप है क्वेश्चन पूछने का, उसको अच्छे से कर। नाउ वी हैव 2 very 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 important chapters for the entire BST की कोर ही वही है जो बुक 2 में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, एंड उसके साथ हम क्लब करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। नाउ व्हाट
इज़ द रीज़न कि आप साथ में ही पढ़ो इन चैप्टर्स को, बिकॉज दे आर वेरी इंटर रिलेटेड एंड दे आर अ पार्ट ऑफ सेपरेट बुक. तो मतलब वो ऑब्वियसली इंटरकनेक्टेड है, तो वो इम्पॉर्टेंट है आपको करना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है बिकॉज आई नो इट्स वेरी लेंदी. आई नो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं टू लर्न एंड रिवाइज, एंड उसमें वो प्रॉपर टेबल वाला क्वेश्चन भी आता है विच इज़ नॉट एनीवेयर, और एक ही न्यूमेरिकल है जो हमारे BST में आ सकता है, चांसेस होते हैं. बट अगेन इट्स प्रिटी ईजी. इतने एग्जाम्स अब तक दे दिए ना, एंड बहुत स्टार्ट में हमें तो ये वाला चैप्टर से ही स्टार्ट करवाया था टू बी ऑनेस्ट. तो हम तो शुरू से इसका एग्जाम देते हुए ही आ रहे थे, तो इट बिकेम वेरी ईजियर फॉर अस टू एवरी टाइम राइट आंसर्स अबाउट इट एंड नो कि ठीक है ये चीज़ के फैक्टर ये है, इसका फैक्टर ये है, यहाँ पर यही लिख कर आना है, कुछ और नहीं लिखना है. ठीक है, तो उस तरह से आपको भी पढ़ के जाना है बहुत ध्यान से. हर किसी का फैक्टर्स अफेक्टिंग ही है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अच्छे से करके जाना, डेफिनेशंस अच्छे से करके जाना. हर फैक्टर को यहाँ पर आंसरिंग में मेन दिक्कत आती है कि कैसे प्रेजेंट करें, क्योंकि चीज़ बात इतनी सी है कि ये फैक्टर अगर ये होगा तो हाई हो जाएगा, ये होगा तो लो रिस्क है, ये है वो है, इतना सही है और कुछ नहीं है. अगर ये फैक्टर हाई है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, ये लो है तो लेना है नहीं लेना है, ये वाली चीज़ बतानी होती है हमको बस. अब उसको हम इलेबोरेट करके कैसे लिखें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो पहले तो अपना कोर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखो कि अगर हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है तो हम डिसीजन नहीं लेंगे, रिस्क कम है तो हम डिसीजन ले लेंगे, यही होता है. वो आपने कर लिया, उसके बाद उसको किसी केस स्टडी अगर आपको दे रखी है तो उससे हाईलाइट करके बताओ कि कैसे इट रिलेट्स टू योर आंसर. एंड इफ़ नॉट देन राइट एन एग्जाम्पल योर सेल्फ कि ठीक है सो एंड सो फर्म इज़ देयर, इट इज़ प्रोड्यूसिंग इतना ज़्यादा रिस्क है. अगर वो इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते हैं तो सो दे मस्ट नॉट चूज टू इन्वेस्ट. बट द वे ऑफ आंसरिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू एक्चुअली लर्न अभी, क्योंकि लर्निंग का बहुत कोर इतना सा दिस हाई लो वाला कॉन्सेप्ट चलता है. वैसे ही हम फ्लो चार्ट बनाते थे हमारे पढ़ने के टाइम पे, उतना सही होता है. उसको आप प्रॉपरली बड़ा करके फॉर 6 मार्कर कैसे लिखते हो, दैट इज़ योर कॉन्सेप्ट के 5 फैक्टर्स तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं और बहुत अच्छे से करके जाना है उनको. उसका आपको सब कुछ आना चाहिए. ठीक है, वो करके जाओ एंड देन उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, उस पर किसी भी एक केस स्टडी को उठाओ एक टॉपिक के रिलेटेड एंड उसको लिख डालो, लिख कर प्रैक्टिस करो, ये आपका होने वाला है. फाइनेंशियल मार्केट्स इज़ वेरी इजी. इसमें डिफरेंसेस पढ़ के जाना, सिक्योरिटीज़ वगैरह में, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स वगैरह में डिफरेंसेस अच्छे से करके जाना. बेसिस ऑफ डिफरेंसेस की डिफरेंस टेबल में बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख कर आना, उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको. और प्रोसेस ऑफ होल ट्रेडिंग वो अच्छे से पढ़ के जाना. एंड लास्ट वाला टॉपिक जो है सेबी का पूरा, कि क्या उसके वो राइट्स का ध्यान रखता है, कौन क्या टाइप ऑफ डिसीजंस होते हैं, वो कैसे ध्यान रखता है. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट, बट हाँ जहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह के बारे में गिवन है वो अच्छे से पढ़ के जाना. वो बहुत फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करके जाना. हर फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे प्रॉपरली पता होना चाहिए, कौन से फंक्शन की बात कहाँ पे हो रही है उसका कीवर्ड आना चाहिए. वो आएगा ही आएगा, पेपर में लिख कर ले लो. ठीक है, वो कर लेना. फाइनेंशियल मार्केट्स में इतना ही है. एंड देन द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल, मार्केटिंग मुझे सबसे 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 गंदा लगता था. ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही एवरीडे लाइफ वाली चीज़ है, बट उसमें इतना कुछ है दैट यू नेवर कैन कंप्लीट इट एट वंस. तो आई वुड सजेस्ट कि इसको एकदम अलग से जिस भी टाइम ज़्यादा दिमाग चलता हो उस टाइम लेकर बैठना, भले ही मॉर्निंग में नाइट में, एंड आराम से उसको 3-4 घंटे देना और फिर उसको कवर करना. हर टॉपिक को बीच बीच में ब्रेक ले लेके अच्छे से बहुत पर्टिकुलरली प्रिसाइजली पढ़ के जाना. जो 4 P's हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर उनके फीचर्स, प्रॉपर उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग एवरी सिंगल थिंग आपको करके जानी पड़ेगी. यू कैन नॉट स्किप इट. होल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग जो भी उसमें स्टेप्स दे रखे हैं इतने सारे 10-12, अच्छे से करके जाना. उसको उस चैप्टर को दे देना टाइम यार, जितना भी लगे. नेक्स्ट डे भी अगर थोड़ा सा बच्चा है पढ़ना पड़े डे 5 पे भी, तो भी उसको कर लेना, बट बहुत अच्छे से करके जाना. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. प्राइस से क्वेश्चन बनता ही बनता है, केस स्टडी बेस्ड आता है, 6 मार्कर आता है, आई एम वेरी श्योर. तो वो करके जाना, डू नॉट स्किप इट. बाकी प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में जिसमें मतलब पॉइंटर्स है ना बहुत सारे, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में से ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, ये सब है, तो वो आता है. ऑर्डर प्लेसमेंट वगैरह जो भी है उसमें कॉन्सेप्ट है वो सब आता है. जहाँ पर आपको दिख जाए ना कि यहाँ पे सेक्शंस है किसी चीज़ के, पूछे जा सकते हैं, तो वो पूछे जाएंगे, उसको अच्छे से करके जाना है. एंड दैट इज़ वाई हर चैप्टर का फ्लो चार्ट बनाना फॉर यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नोटिंग डाउन द कीवर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब इतना रिलेटेड है, सब इतना सिमिलर है. यू विल फील अ लॉट डिस्ट्रेस्ड कि यार ये इसमें था, ये इसमें था, ये इसमें था.
तो अगर आपके पास एक फ्लो चार्ट होगा जो आपने खुद अपने हाथों से बनाया होगा वाइल स्टडीइंग, यू विल रिमेंबर इट बेटर, एंड आप उसको जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको पूरा चैप्टर लाइन वाइज याद आएगा. द वे यू मेक द फ्लो चार्ट, द वे यू विल रिमेंबर आपका आंसर प्रॉपर या चैप्टर प्रॉपर. तो उस तरह से आपको इसको पढ़ना है. एंड दिस इज़ हाउ आर डे 4 विल एंड. फॉर डे 5 देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो जहाँ पर आई विल बी गिविंग यू एक प्रॉपर चेकलिस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच यू शुड मेक श्योर कि आपने पढ़ ही लिए हो, रिवाइज कर ही लिए हो. डू नॉट स्किप दैट. उसको करके जाना अच्छे से. आज मतलब कल परसों में वो वीडियो भी आ जाएगी. सो फॉर डे 5 कीप इन माइंड कि वो वीडियो देखकर ही आप आगे बढ़ो. रिविजन कैसे करना है भी बताऊंगी, एंड क्या क्या मतलब वो तो पढ़ना ही है, ऐसे वाले टॉपिक्स बताऊंगी कि उसको स्किप मत करके जाना वरना पेपर अच्छा नहीं होगा. ठीक है, उसको अच्छे से करके जाना. एंड दिस इज़ आर होल प्लान फॉर लाइक नेक्स्ट 4 days जो आपको फॉलो करना है टू कवर योर सिलेबस इन ग्रेट डिटेल एंड वेरी प्रिसाइजली, पर्टिकुलरली. It will help you a lot and it will actually lead to effective utilization of the gap you have received. Focus is on keywords, headings, particular precise headings, and knowing core concept ताकि आप उसको relate कर पाओ case studies से अपना answer present कर पाओ. And this is it. You will be good to go if you cover your syllabus this way and in the way जैसे combination मैंने बताया. You won't feel overwhelmed and आप आराम से बहुत काम रह के एक peace of mind के साथ अपना entire syllabus cover कर पाओगे. ठीक है. So yeah, this is it for today's video. I hope it helped you, and if it did, do hit the subscribe button and like, share and comment. And I'll see you in my next video. Tab tak ke liye take care and bye bye.